न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने आज भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में उन्हें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित अन्य लोग शामिल हुए। I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन परिसर में राज्यसभा इंटर्नशिप कार्यक्रम के चरण 1 के तहत प्रतिभागियों के चौथे बैच के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ये एक दीक्षा है। हमारे पास कोई दूसरा ग्रह नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाली को बढ़ाना होगा। I leave with you with some thoughts which you must keep in mind. And first is environment. For a simple reason, it is the narrative which we notice every day, climate change. And we forget that what we can contribute individually, we are not doing it. We wonder what we can do individually. So Prime Minister has given a call. माँ के नाम एक पेड़. Just imagine in the entire country, if each of us takes to plant माँ के नाम एक पेड़ and nurture it, it will have impact. This one is not a limitation, it is initiation. Because you know it, everyone knows it. We don't have another planet to cohabit. And that the change is taking place. And the change is taking place for worse. We are feeling it. We have to do something urgently about it. The situation is apocalyptic. There is not enough time. So rather than thinking what will happen with Paris Agreement, let agencies do their job. Let us first start with our job. So I am sure each one of you will take a pledge that at least एक पेड़ माँ के नाम. Planting is not ritualistic. Nurturing is more important. You will do it. उपराष्ट्रपति ने कहा कि नेगेटिविटी फैलाने वालों की संख्या कम है, लेकिन उनका ट्रैक्शन ज्यादा है। ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं। सोशल मीडिया तो अनमैनेजेबल हो गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि हमारी संस्कृति और संविधान की आत्मा है।
नेगेटिविटी फैलाने वालों की संख्या कम है, उनका ट्रैक्शन ज्यादा है। और ऐसी बात आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया तो अनमैनेजेबल हो ही गया है, ट्रैक्शन हो जाता है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रवाद, राष्ट्र सर्वोपरि, ये हमारी संस्कृति और संविधान की आत्मा है। बिलीफ इन आवर नेशन, नेशनलिज्म, nation first, these are fundamentals on which we exist. Harmony is to be achieved as 100% harmony. अब कुछ लोगों की काबिलियत बड़ी जबरदस्त है। Disruptors of harmony get fast tracked and sometimes recognition, and people ignore the notoriety of it. तो मेरा आपसे रहेगा कि हार्मनी इज फंडामेंटल। आप 20 लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं। 8 are from one gender, 12 are of the other gender. There can be numerous issues on you can develop disharmony. Why? So take a message that you will be contributing to harmony by action, by thought, and by dissemination. कीजिए आगे. Over these few weeks, you have to be really knowledgeable about Bharat. पूरी दुनिया भारतीय युवाओं की क्षमता के प्रति आकर्षित है। आज दुनिया के ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा है कि उनके देश में कुशल जनशक्ति भारतीय युवा काम करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि भारत के युवाओं की वैश्विक मांग और बढ़ने वाली है। भगवान श्री स्वामीनारायण ने हमें बताया है कि बड़े लक्ष्य कठोर तप से हासिल होते हैं। उन्होंने हमें बताया राष्ट्र को निर्णायक दिशा दिखाने की क्षमता युवा मन में होती है। उन्होंने हमें सिखाया कि युवा राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं और करेंगे। इसके लिए हमें सशक्त, समर्थ और शिक्षित युवाओं का निर्माण करना होगा। विकसित भारत के लिए हमारे युवा सशक्त होने चाहिए। स्किल्ड युवा हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। हमारे युवाओं की ग्लोबल डिमांड और बढ़ने वाली है। आज मैं विश्व के जिन जिन नेताओं से मिलता हूं, ज्यादातर नेताओं की अपेक्षा रहती है कि भारत के युवा, भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत के आईटी सेक्टर के नौजवान उनके देश जाएं, उनके देश में काम करें। पूरा विश्व भारत के युवाओं के सामर्थ्य से आकर्षित है। ये युवा देश ही नहीं बल्कि विश्व की जरूरतें भी पूरी करने के लिए तैयार होंगे। इस दिशा में भी हमारे प्रयास राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होंगे।
मैं एक और आग्रह भी आपसे करना चाहता हूं। स्वामीनारायण संप्रदाय हमेशा नशा मुक्ति पर बहुत काम करता रहा है। युवाओं को नशे से दूर रखना, उन्हें नशा मुक्त बनाने में हमारे संत महात्मा हरिभक्त बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। युवाओं को नशे से बचाने के लिए ऐसे अभियान और ऐसे प्रयास हमेशा जरूरी होते हैं, हर समाज में जरूरी होते हैं, देश के हर कोने में जरूरी होते हैं, और ये हमें निरंतर करना होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विकसित भारत के दृष्टिकोण को अपनाने और अगले 25 वर्ष में इसे हासिल करने में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कुशल श्रमिकों की एक नई पीढ़ी विकसित करने के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों को रेखांकित किया। जैसी ललक आजादी के आंदोलन में थी, वैसी ही ललक, वैसी ही चेतना विकसित भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों में हर पल होना जरूरी है। आप सब और हम सब मिलकर लोगों को प्रेरित करें कि आने वाले 25 साल तक हम सबको, और विशेष करके हमारे नौजवान साथियों को, विकसित भारत के उद्देश्य को जीना है, पल पल जीना है, हर पल उसके लिए अपने आप को जोड़ के रखना है। इसके लिए जो जहां है वहीं से अपना योगदान देना शुरू कर दे। जब वो विकसित भारत के लिए योगदान देगा, वो जहां होगा वहीं से उसका लाभ मिलेगा ही। अब जैसे हम लगातार कहते हैं कि विकसित भारत बनने की पहली शर्त है हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। अब आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए कोई बाहर वाला काम नहीं आएगा, हमें ही करना पड़ेगा। 140 करोड़ देशवासियों को ही करना पड़ेगा, यहां बैठे हुए सब हरिभक्तों को करना पड़ेगा। और इसकी शुरुआत कहां से करेंगे? शुरुआत होती है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा सकता है। विकसित भारत के लिए हमारी एकता, देश की अखंडता, वो भी बहुत जरूरी है।